जय माँ. Okay. Mother is in one of her talks mentions that in adults the mental activity tends to paralyze the spontaneous exchange of energies, receiving and spending too. Please explain how this happens and what can we do in day to day life to protect it. Yes, it's not about protecting it, it's a natural process. So, before the mind comes into existence, it's like little animals. They receive energy and they give energy. It's like plant life and they live in harmony. They don't bother or care about it. And same thing happens with little children. So they spontaneously receive and spontaneously give energy. But what does the mind do? Mind creates an individualization. Mind's purpose is to create individualities. How? By creating separations. Animals don't think it is me, it is you. They don't have that sense. They have a rudimentary sense of their body, but individuality begins with the mind. The mind's whole purpose, it narrows down, cuts down the vast movement into bits and parts. That's how mind operates. So, because say for example, let's say that somebody walks into this room, somebody who is, let's say, more into a vital oriented will say, ah, wow, this is very nice, or whatever other reaction. But if you ask, or let's say about the camp, if you ask a person who is very mentalized, so he'll describe, well, this is how we went, this was the food, this was the classes, because the mind can only understand things through bits and parts. The sense of gestalt is not there for the mind. It is needed, stage of evolution. There is nothing without forming a conscious individuality. Talk about yoga, Mother has herself said, even talk about surrender, it doesn't make sense. So, in the social stage of evolution, we have not begun spirituality. And Mother says, if you are still too much into the social stage, then you have not yet ready to even put your first step into spiritual life. Social stage means we are driven by people's opinions, viewpoints, whatever is the common thought of everybody that we accept. We don't have our own independent view of life, however ignorant. This is important. So, individuality is the first thing she says to be conquered. Surrender comes later. Individuality means we have chosen very consciously how I would think, what is my view, ignorant view, doesn't matter. How I feel. So, all this is a process of the mind. So, mind cuts us from that, but real life is moving in a totality. But mind has to cut it like that. For example, we may say, the mind would say my view. But is it only my view? So many people have a similar view. We will see in an extreme case of egoism, somebody will say, in my life, this is how things have happened. But if you really look at life, this is how probably things are happening in everybody's life. But the mind tends to cut things into a section and look at it like that. And therefore it is cut off from the universal current or the universal movement. But it's not about protecting it. This is a phase through which we have to go through. Then once we have formed an individuality, then we have to offer it. Because as I was saying that nothing belongs to me and I am a vagabond, and suddenly somebody says कि ये घर बहुत अच्छा है, and I tell him कि हाँ ले लो आप घर, आपका घर है, आपका ही समझो, आपका ही समझो, आप ले लो. और वो अगर आपकी बात को सीरियसली ले लेगा तो पहले आप उस घर को खरीदोगे, उसके लिए मेहनत करोगे, फिर बोलोगे ये मेरा घर, ये तेरा घर, फिर आप इस घर को दे सकते हो, नहीं तो आप नहीं दे सकते हो. सो वही चीज है. दिस इज अ फेज ऑफ इवोल्यूशन, नेसेसरी फेज, इंडिविजुअलिटी का विकास. This question is very interesting, I must say. Some practical tips, especially for couples, to make life more harmonious and walk hand in hand on the golden path. मैं एक थोड़ा सा सेमी ह्यूमरस क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ. When I find it, I'll let you know.
No, there is. Mother has given something very beautiful. So पहला चीज जो सबसे जरूरी है कपल्स को हैंड इन हैंड वॉक करने के लिए, किस चीज के सेंटर में हम अपने जीवन को चला रहे हैं. तो 3 तरह के, हिंदी इंग्लिश ओके, 3 टाइप्स ऑफ हार्मोनियस टुगेदरनेस एग्जिस्ट. डिसहार्मोनियस के तो बहुत टाइप्स हैं, एंड देर इज नो मैरिड कपल वेयर देर इज no disharmony at all. You know that joke, no? Then somebody was praying to God, and then after a lot of tapasya, God appeared and he said, please solve the Indo-Pak problem. And God said, this is not easy, huh? No, Arab-Israel conflict. He said, you know, it's very thousands of years old. This is not easy. Ask for something else. So the person thinks and says, okay, I have fights at home between me and my husband or me and my wife. Can you do something about it? So God pauses for a moment. He says, okay, bring me that map of Israel. Bring me the map of Middle East. No, maybe that is easier. So this is not easy, and I can say one thing, that as long as life is centered around the ego, then forget about a perfect harmony. And most human lives are around the ego and desire. What happens is that people learn to accept each other, and I think that's a great step. What people can do is to learn to accept each other, their deficiencies, their difficulties, their challenges, and that makes life workably beautiful. Because you are one of the biggest problem of couple relationship is that one is expecting. See, before we marry, we all have our ideal, some kind, whether from the movie or from some book or de novo, about what the partner should be or would be. और फिर शादी हो जाती है, तो अब हम क्या करते हैं ना, हम उस व्यक्ति को नहीं प्यार करते हैं, हम अपने उस आइडियल को प्यार कर रहे हैं. तो अब 2 समस्या होती है. शुरू में हम उस आइडियल को प्रोजेक्ट करके उसमें देखते हैं. प्यार में यही होता है ना, जिसको लव मैरिज कहते हैं. यू आर नॉट रियली सीइंग द पर्सन एज द पर्सन इज. यू हैव एन आइडियल, यू हैव प्रोजेक्टेड द इमेज, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग दैट दिस पर्सन इज सो एंड सो. और जब विवाह होता है तो रियलिटी चेक होता है कि भाई इस तो परफ्यूम का, वो परफ्यूम था जो मुझे लग रहा था बहुत अच्छा है, ये तो मेकअप था, ये तो मीठे मीठे बोल खाली थोड़ा पास आने के लिए थे. तो ये होती है ये समस्या, क्योंकि हम व्यक्ति से नहीं प्यार करते. ये बहुत सैड चीज़ है. हम वास्तव में अपने आप से प्यार करते हैं. वो यज्ञवल्क वाली बात, हमारे अंदर जो आइडियल है उसी इमेज को प्रोजेक्ट करते हैं. जब वो धाराशायी होती है तो बहुत दुख होता है. तो व्यक्ति से प्यार करना चाहिए, और जब व्यक्ति से प्यार करते हैं तो वो जैसा है, जो है, उसको स्वीकार करके हमको आगे बढ़ना चाहिए. ये एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं. उसमें होगी लड़ाई झगड़ा, लेकिन यू विल स्टिल बी एबल टू वर्क थ्रू इट. क्यों? क्योंकि नॉट जस्ट अबाउट द पर्सन. प्रेम एक बहुत सुंदर चीज़ है, और उसी को नचर करना, नरिश करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. तो ये तो एक लेवल ऑफ रिलेशनशिप हो गया. एक और प्रकार की हार्मनी होती है जहाँ लोग अपनी जीवन का कोई खास लक्ष्य नहीं होता, लेकिन दे आर लाइक हैप्पी गो लकी. तो उसको मैंने टर्म दिया उसको, बंटी एंड बबली. इस तरह के कपल होते हैं. तो दोनों की जिंदगी इज फन. तो आपको देख के लगे अरे ये तो बड़े मजेदार लोग हैं, ये तो हर पार्टी में चले जाते हैं, कपड़े वैसे पहन के, दोनों बड़े खुश हैं. लेकिन वो दोनों साथ नहीं हैं. इट्स लाइक 2 एनिमल्स विच आर टुगेदर. क्योंकि साथ का कोई चीज ही नहीं है. उनकी जिंदगी केवल, अब कभी कभी ऐसा होता है कि 2 एक जैसे बंटी बबली कपल मिल गए, और वो सबसे लोअर काइंड ऑफ मैरिज है, वेयर दे आर बोथ हैविंग फन एंड लाइफ इज अबाउट फन. तो उसको हम हार्मनी नहीं कह सकते, लेकिन वो बाहर से अगर हम देखते हैं तो लगता है कि हार्मनी है. वो हार्मनी नहीं है, वो एक प्रकार की एनिमल टुगेदरनेस है. फिर बच्चे वगैरह हो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी उसी में गुजर जाती है. तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं. अब ये 2 से ऊपर एक जो, जिसको रियली कहा जाए कपल इन द ट्रू सेंस, तो वो होता है जब दोनों के लाइफ में कोई हायर आइडियल है.
उसके अराउंड हम लाइफ को सेंटर करते हैं. हायर आइडियल ह्यूमन हो सकता है, मंडेन या डिवाइन हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है या स्पिरिचुअल हो सकता है. लेकिन एक हायर आइडियल, इट कुड बी सर्व ह्यूमैनिटी और सर्व डिवाइन. आई एम टॉकिंग ऑफ दीज टू डिफरेंट लेवल्स. तो दोनों उस चीज को केंद्र में रखते हैं. ये नहीं कि झगड़ा नहीं होता है, लेकिन वो कोर है उनका, तो वो कोर उनको पकड़े रखेगा सब ट्रायल्स ट्रिबुलेशन से गुजर के. सो ये तो तभी संभव है जब आइडियल हो. ज़्यादातर मैरिज तो इसलिए नहीं होती हैं. मैरिज होती है कि भाई एक बंगला बने न्यारा, और वो भी ऐसे कुछ देख रहा है कि भाई लड़की भी कमा रही है, नहीं कर रही. ये सब क्या मीनिंगलेस चीज़ें हैं, क्या बोला जाए इनके बारे में, यही सब देखते हैं. तो अगर आइडियल है तब इंसान को बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि अगर अगले व्यक्ति का आपके आइडियल से कोई मेल नहीं है तो आज नहीं तो कल वो अंदर से तो चीज़ टूट जाएगी, बाहर से दिखेगी. क्योंकि खासकर बच्चा हो जाता है तो वन डजंट डू मेनी थिंग्स बिकॉज ऑफ द चाइल्ड. सोशल चीज़ें है ना, कुछ मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, मतलब बट पीपल जस्ट स्टे टुगेदर. सो यू हैव टू हैव अ सेंट्रल आइडियल. और इसके ऊपर है अगर डिवाइन एस्पिरेशन है दोनों की, तब तो फिर बल्ले बल्ले. पर जिंदगी फिर भी, क्योंकि आपकी अगर कोर एस्पिरेशन में एक हो, लेकिन आपके नेचर्स भी डिफरेंट होंगे और ईगो फिर भी ऑपरेट कर रही है. ये थोड़ी है कि आपकी एस्पिरेशन है, मान लो मदर श्री अरबिंदो, लेकिन सोल को आपने डिस्कवर नहीं किया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो वही ईगो वाला है. जिंदगी हारमोनियस बनना तभी शुरू होती है जब आपने सोल को डिस्कवर कर लिया. तब आपके अंदर प्रेम, एक अलग क्वालिटी चेंज हो जाती है ना प्रेम की. घृणा, एंगर, ये सब चीज़ें आती नहीं है उसके बाद. तब तक ये मान के चलो कि कम से कम एक कॉमन हायर गोल है. यही है जो हमारा आइडियल, कि बीच में अग्नि है और चारों तरफ उसके 7 फेरे लग रहे हैं. अब वो 7 फेरे हैं कि हर लेवल पर यूनियन. ये तो बड़ी आइडियल चीज़ है. मतलब फिजिकली भी होती है. देयर आर कपल जिनके फिजिकल बीइंग्स के अंदर एक कोई चीज़ है जो जेल करती है. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. दे आर वेरी फिजिकली कंफर्टेबल विद ईच अदर. आजकल के बच्चे ये चीज़ को समझते हैं, पहले इस चीज़ को नहीं समझा जाता था, और उसके कारण भी बहुत सारी डिसरप्शन होती थी. लोग फ्रीली डिस्कस नहीं करते थे. एनीबडी इज एबल टू कनेक्ट विद इट? ब्लैंक. ये संभव है कि इमोशनली आप एक दूसरे से जेल कर रहे हैं लेकिन फिजिकली नहीं जेल कर रहे हैं. इट्स पॉसिबल, क्योंकि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, उसका सब्सटेंस, उसका मैटर, उसकी अपनी एक भूमि है, उसका कॉम्बिनेशन. अच्छा, फिजिकल एफिनिटी है, उसके बाद में आपकी सेंस के लेवल पर एफिनिटी होनी चाहिए, थॉट के लेवल पर, फीलिंग्स के लेवल पर. एक ही प्रकार की चीज़ें अगर दोनों को मूव करती हैं तो लाइफ कैन बी वेरी ब्यूटिफुल. पर कोर में तो हमेशा अग्नि है. वहाँ ईगो आ जाएगी, मैं बॉस हूँ या तुम बॉस हो, या मेरे माता पिता बॉस हैं, तेरे माता पिता बॉस हैं, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो फिर कोलैप्स करेगी. तो ये बेटर यही है कि अगर हायर एम है, तो जैसे प्रणब दा ने एक बार किसी को कहा था, वो ब्लेसिंग लेने गई मैरिज के लिए, कहा यदि ना करबे तो ভালো. नहीं, ऐसे कहा, অনেক দেরি হবে তাহলে ভালো, और यदि ना करबे तो অনেক ভালো. If it gets delayed, it's good, but if you don't get married, it's very good. श्री अरबिंदो ने कहा है कि अगर तुम्हारा हायर आइडियल है तो थिंक 50 times बिफोर मैरिंग. क्यों? क्योंकि आपका बहुत अधिक उसमें इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है, और बच्चा अगर हो जाता है तो इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू डिसएंगेज फ्रॉम दैट एंड पुट योर एनर्जीज. क्योंकि एनर्जी तो वही है ना, आपने जमा कर दिया एक बैंक में, तो अब उससे डिसएंगेज करके उसको हायर परस्यूट में लगाना बहुत कम बचता है. बिकॉज मैरिज कैन बी वेरी एब्जॉर्बिंग, और खासकर इफ वन हैज ए चाइल्ड. ये नहीं कि कर नहीं सकते हैं, पर बहुत ही अधिक. फिर बाय द टाइम बच्चे बड़े बड़े होते हैं, फिर उनकी भी प्रॉब्लम चलती है, तो उलझ जाता है व्यक्ति. लेट्स फेस द फैक्ट. तो फिर क्या करें? शादी नहीं करें, कंपेनियन की तो इच्छा है.
मित्रता करो। अंत में अच्छी शादी का, सक्सेसफुल मैरिज का यही हश्र और अच्छा हश्र, बेस्ट केस सिनेरियो, दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। वेरी गुड फ्रेंड्स, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रेंड्स। क्या होता है कि ये नहीं कि दे हैव टू क्लिंग टुगेदर, एट द सेम टाइम दे हैव ए सर्टेन डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, दे हैव फाउंड ए कंफर्ट जोन फॉर ईच अदर। दोनों के अपने अपने गोल्स हैं, लेकिन दे आर देयर फॉर ईच अदर। अगर कोई भी ज़रूरत है, केयर है, कंसर्न है, ये ऑप्शन ज़्यादातर मैरिजेज में आजकल इट इवॉल्व्स इनटू दैट। बट नाउ डेज चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, वो बाईपास करते हैं मैरिज को। दे हैव वेरी गुड फ्रेंडशिप, दे गो थ्रू वट एवर एक्सपीरियंस दे हैव टू गो थ्रू। फिर उनको लगता है कि नहीं, ये आई डोंट थिंक दिस गोज विद, बिकॉज दे डिस्कवर प्रॉब्लम मैरिज की क्या है। यंग एज की मैरिज खासकर लोग 22, 23, 24 में शादी कर लेते हैं। अभी तो आपका डेवलपमेंट हुआ नहीं, कौन जाने एक मोड़ आया, मैं गड्डी छोड़ आया, कहाँ आप आपकी गाड़ी कहाँ मुड़ जाएगी। इट्स ए फैक्ट। आपके अंदर अचानक मान लीजिए कि सीवियर एस्पिरेशन जाग गई, अब वो बंदा तो तैयार नहीं है, अगले बंदे ने तो आपकी कद काठी देख के शादी की और आपके अंदर भगवान की धुन लग गई, तो वो क्या करेगा। आप बोलेंगे कि मुझे ये लोअर नेचर की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, वो कहेगा ये तो मेरा पूरा आधार खत्म हो गया शादी का, मुझे तो यही सब में इंटरेस्ट है। और शुरू में ये संभव है कि दोनों वाइटल, ज़्यादातर मैरिजेज वाइटल लेवल पे अट्रैक्शन ये सब होती है। अब अगर उसी लेवल पर व्यक्ति रहे, दोनों इवोल्यूशन ना हो, तो वो एक अलग बात है, पशु की तरह वो जीवन एक हार्मोनियस। लेकिन अगर एक के अंदर अगर इवोल्यूशनरी इंपल्शन आ गई और दूसरा अगर साथ नहीं चल पा रहा है, तो डिसलोकेशन होगा ही होगा। तो ये इसलिए कृपया जल्दबाजी ना करें। हाँ हाँ, आपके, हाँ अच्छी बात है। अगर जल्दबाजी वाला कोई नहीं है तो बड़ी खुशी की बात है। ये जो जल्दी का काम प्रॉब्लमेटिक, शैतान का काम नहीं। ये क्योंकि एक समय था कि मैरिज कर दी जाती थी। अब खैर उस समय सोसाइटी का दबाव था, तो एक्सेप्टेंस भी वैसे करते थे। लेकिन जो उसका एक जॉय है, जो ग्रोथ है, ये मैंने कई लोगों में देखा है। विवाह हो जाता है और अचानक, खासकर मैंने श्री अरविंदो माँ के कंटेक्स्ट में देखा है, एक व्यक्ति का रुझान हो गया, एक स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ टर्निंग हो गई और दूसरे की नहीं हो पा। अब ये तो आप जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। तो आप वो जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आप शेयर ही नहीं कर पा रहे हो। जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा अरे आज गए हम वहाँ खाना खाने, वहाँ ये हुआ, हमारे कंपनी में ये हुआ, हमारी दुकान में ये हुआ। लेकिन आप उसे शेयर करना चाह रहे हो कि आज मैंने ये पढ़ा और कितना अच्छा लगा, क्या हम इसके बारे में डिस्कस करें, नहीं कर पा रहे हो। तो मेंटल कंपेनियनशिप इज ए हायर फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। तो जो रिलेशनशिप केवल प्राणिक भूमि पर उठी और खत्म हो गई, उसकी तो बात नहीं हो रही, वो तो पशु जैसे रिलेशन है। लेकिन मेंटल कंपेनियनशिप बहुत जरूरी है डेवलप्ड ह्यूमन बींग्स में। और उसके आगे साइकिक एंड स्पिरिचुअल टुगेदरनेस। सो इट्स ए, देर से करें तो अच्छा है, ना करें तो और भी अच्छा है। साथ रहें, खुशी खुशी रहें। अगर लगता है कि नहीं हमारा नहीं बनता, कोई बात नहीं है, अकेला चलो रे, मतलब नो, आई एम सेइंग फ्रॉम दी स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। समाज के लिए क्या है वो एक अलग बात है। माँ बाप तो यही कहते हैं कि तुम शादी नहीं कर रहे हो। आते हैं ना मेरे पास क्वेश्चन, माँ बाप कहते हैं कि यू आर बीइंग वेरी सेल्फिश, हमारा कर्ज नहीं उतारना। अब बताओ, माँ बाप कोई कर्ज करते हैं? कोई माँ बाप ऐसे बच्चे को बड़ा करते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर कर्ज कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं? इट इज सच ए लो मेंटालिटी। पर अब उनको क्या बोलूँ? अब बच्चे को मैं ये तो नहीं कह सकता ना तेरे माँ बाप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। करती हैं, हमारा कर्ज उतारना। अरे काय का कर्ज? यू हैव ब्रॉट ए चाइल्ड इनटू एग्जिस्टेंस, द लीस्ट यू कैन डू इज टू लुक आफ्टर द चाइल्ड। बच्चे ने तो नहीं कहा था कि मे आई कम इन। नाउ द चाइल्ड हैज कम, नाउ यू वांट द चाइल्ड एज योर गारंटी इन योर ओल्ड एज, इन्वेस्टमेंट। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि भाई बच्चा आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ी है कि ओल्ड एज की एक गारंटीड स्कीम है कि bring one into existence, after 20 years you start reaping the benefits, dividends. But unfortunately आज के समय भी कई माँ बाप ऐसा सोचते हैं। होना तो ये नहीं चाहिए। बच्चा एक एज के बाद सेट फ्री,
तेरी अपनी जिंदगी है, जा धन्नो जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन, अरे ठीक है। इतना भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये आजकल जो हो रहा है ना, बिल्कुल सही हो रहा है। दे आर डिस्कवरिंग एंड देन दे आर ग्रोइंग। एंड में मैंने देखा है कि उस प्रोसेस में अगर एक कपिल फ्रेंडशिप रखता है, डीप फ्रेंडशिप, वो सॉलिड चीज होती है, बहुत सुंदर होती है। और मैरिज में भी जितनी जल्दी एक अच्छे दोस्त का वो बना लें तो बहुत ही अच्छा होता है। ओके, इस मैरिज के पुराण पर तो मतलब ओके, व्हाट टू डू विद द ईगो, सीकिंग वैलिडेशन, वांटिंग टू प्रूव इटसेल्फ, टू फील वर्दी एनफ, यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट। ह्यूमन ओपिनियंस हैव नो वैल्यू एट ऑल, नो इट वंस फॉर ऑल। ह्यूमन ओपिनियंस की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ कैसी होती है। आपने कभी देखा है जब वो पेंटिंग की एग्जीबिशन या कोई और चीज़ की एग्जीबिशन, सारे लोग पहुँच जाते हैं, ओ दिस वन इज़ वेरी गुड, ओ दिस वंडरफुल, आर्टिस्ट ने ऐसा सोचा। अरे तुमको कुछ भी नहीं पता है पेंटिंग के बारे में, ओपिनियन जरूर देनी है। ह्यूमन बीइंग्स आर इन इग्नोरेंस, वो क्या वैलिडेट करेंगे? उनकी प्रेज से चढ़ो मत, अरे हमको इतने लोगों ने प्रेज किया। उनकी क्रिटिसिज्म से परेशान मत हो, बल्कि कंप्लीटली इग्नोर दैट ओपिनियन, दैट हैज नो मीनिंग। ह्यूमन ओपिनियंस और ओपिनियंस ऑफ इग्नोरेंस, अगर उसको हम इंपॉर्टेंस देंगे तो हम अपने पथ से भटक जाएंगे। इतनी डेंजरस है, क्योंकि हम उनके रास्ते पर चल पड़ेंगे जो वो चाहते हैं, तो हम वैसे बनने लगेंगे जो हमको प्रेज मिलेगी जिनसे। तो अपनी जिंदगी तो हमने खो दी। So we have to learn that human opinions are opinions of ignorance, which includes the opinions of our parents, unfortunately, because वो भी ignorance में है। Respect देना, केयर करना अच्छी बात है, हमको रिस्पेक्ट आप दीजिए। केयर तो सबकी करनी चाहिए, पेरेंट्स की जरूर करनी चाहिए, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन उनके अनुसार जीवन को सही गलत समझना और वैलिडेट करना, बहुत सारी चीज़ें जो मनुष्य के अंदर यूनिक होती है, जिसको जैसे मैंने बताया, अब टॉर्टोइस को क्या सांप या मछली वैलिडेट कर सकती है? जमीन का क्रीचर कहेगा बड़ा स्लो है, मछली से पूछो वो भी कहेगी बड़ी स्लो है। यही कहेगी ना कि ये तो ना वहां का है ना यहां का है, मिसफिट है। लेकिन टॉर्टोइस में ये है कि वो दोनों जगह जी सकता है, अडेप्टेबल है। टॉर्टोइस के अंदर ऐसी क्षमता है कि कोई भी अटैक हो, लायन तक का अटैक अपने को शेल में डाल ले तो कोई हार्म नहीं कर सकता। टॉर्टोइस की क्षमता है कि एक लंबे समय तक इट कैन लिव। तो अब हर किसी को अपनी यूनिक स्ट्रेंथ को देखना है और उसको डेवलप करना है। यू हैव टू डिस्कवर योर ओन यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड डेवलप इट। ये है वैलिडेशन तो बिल्कुल नहीं, दैट्स ऑल आई कैन से। इज इट द वे लीडिंग टू फाइंडिंग? नॉट एट ऑल, not at all. Human opinions never is a way to find your purpose of life. बिल्कुल भटकन है। मतलब आपका कोई पर्पस होगा भी तो आप पता नहीं कहाँ चले जाओगे। कहना है ना कि पहुंचे थे जापान, चले गए चीन, समझ लेना। नहीं देखी किसी ने ये फिल्म? किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया? हाँ, जाना था जापान, पहुंच गया चीन, समझ गए ना। हाँ बोलो गुनगुन। Very few people will qualify for that. Certainly not the average human being, certainly not parents most of the time. नहीं, आई एम सॉरी, मतलब आई एम नॉट मीनिंग यू पेरेंट, बट आई मीन इन जनरल। मैं इसको जनरल भूमि पर, योर पेरेंट्स वुड बी एक्सेप्शनल, बट जनरली पेरेंट्स, ये हम प्रिज्यूम करते हैं कि दे आर वाइजर. विच वे? बिकॉज दे आर ओल्डर इन एज. देन हाउ डू वी नो वाइजर? वी डोंट नो. वाइजर जो व्यक्ति केवल, मैं तुझे एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूं. जो व्यक्ति वाइज है वो विजडम को गैदर करने में अपनी एनर्जीज को लगाता है, मिनिमम लॉजिकल. जिसने अपनी सारी एनर्जी काम धंधा रोटी कपड़ा घर मकान में लगाई, वो वाइज कहाँ से हो गया? उसने तो विजडम के लिए कुछ किया ही नहीं. तो वाइज लोग संसार में बहुत कम है. मिले तो उनकी ओपिनियन को पूरी तरह मानना चाहिए, फिर तो आपको परफेक्ट ओबीडियंस होनी चाहिए.
लेकिन वाइज कौन होगा? जिसने अपने जीवन को, विजडम को गैदर करने में लगाया. ये तो मिनिमम है ना. अगर मैं बोलूं कि मैं हील कर दूंगा लेकिन मैंने डॉक्टरी पढ़ी नहीं है, तो ये उस तरह की बात है. जिसने पूरी जिंदगी को केवल पैसे कमाने में लगाया या केवल अपने आप को दुनिया की नजरों में ऊपर उठाने में लगाया, उसके पास विजडम कहां से आएगी? है ना? इज दैट क्लियर? राइट. हाउ शुड, हाँ, सो यू वन डजंट डिस्कवर इट थ्रू पीपल. One thing is very sure. Purpose of life, one has to discover oneself. It is a very sacred thing. Nobody should be telling you. How should people with different temperaments pursue the path of yoga? Yes, that is true. That's why योग में individuality, ज़्यादातर जो लोग योग में जाते हैं वो बहुत individualistic होते हैं. जो genuinely turn करते हैं योग में, और ये जो बात हुई individuality की स्टेज से जाना होता है. और इसीलिए आप आश्रम में भी आप देखेंगे कि इवन हस्बैंड वाइफ जो रहते हैं, जो आए, माँ ऐसे नहीं लेती थी कि भाई 1 कम 1 फ्री. मतलब ये नहीं होता था कि हस्बैंड टर्न है तो वाइफ को भी साथ में ले लिया. नो, शी हैज टू डिसाइड ऑन हर ओन. इट वॉज नॉट अंडरस्टूड दैट इफ हस्बैंड इज फॉलोइंग द पाथ, वाइफ ऑल्सो हैज टू फॉलो द पाथ. हस्बैंड में से, और ऐसे बड़ी इंटरेस्टिंग इंस्टेंसेस है. एक तो है कि एक हस्बैंड वाइफ आए और वो हस्बैंड को लग रहा था कि मैं तो लाइव डिवाइन वगैरह पढ़ता हूँ और समझता हूँ, मेरी बीवी तो ज़्यादा कुछ उसको समझ नहीं है, पता नहीं वो यहाँ कैसे रह पाएगी, कुछ दिन भी नहीं रह पाएगी. ही थॉट कि लॉन्ग टर्म वो रहेगा आश्रम में. तो ये सज्जन आया और 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको कोई चीज़ से डिसएंचैंटमेंट हुई, क्योंकि उसको लगता था मैं बहुत जानता हूँ और आश्रम में तो सब 52 गज के, तो आप किसको सब जानते हैं, आप बोल के देखिए, आपको एक लेक्चर दे देंगे. तो अब वो क्या हुआ कि ये नाराज हो गया, बोला ये मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे, जा रहा हूँ. तो बीवी से बोला चलो. उसने कहा मैं नहीं जाती. कहा क्यों? कहती कि मैं तो अम्बे माँ की पूजा करती हूँ, और उस दिन क्यों में मैं खड़ी थी तो आप सब लोग बोलते हो मदर मदर, तो मैंने अम्बे माँ को इन्वोक किया, मंत्र किया, देखने को कि अगर वो मदर हैं तो सुन लेंगी. तो माँ ने अपना सारा काम छोड़ा और मुड़ के देखा उसकी ओर. अब इसको तो अंदर कांप गया पूरा, पर उसने कहा नहीं नहीं मैं फिर से देखती हूँ. दोबारा उसने किया. कुछ समय के बाद अगेन मदर लेफ्ट ऑल द वर्क एंड लुक्ड एट हर. अब तो ये हिल गई. जब पास में आई तो माँ ने उससे कहा कि यू वांट टू सी माई सेलेस्टियल फॉर्म. ये तो एकदम बोल्ड आउट हो गई. कहती ये है माँ, खत्म, कोई लाइफ डिवाइन कुछ नहीं. एंड फैक्ट इज शी नेवर वेंट. शी नेवर वेंट. विद्यावती कोकिल जी की भी यही कहानी है. हाँ, शी फेंटेड. पर इनका तो विद्यावती कोकिल जी जिन्होंने इतनी सुंदर सावित्री का ट्रांसलेशन किया है, she came, she said no, I want to stay here. Credit to her husband also, he let her go and तो ये तो एक इंडिविजुअल परस्यूट है, ये फैमिली अफेयर नहीं है. अगर फैमिली अफेयर हो जाए तो अच्छी बात है, पर ये फैमिली अफेयर नहीं है भगवान के पास. तो इसीलिए आश्रम में इवन अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो भी इंडिविजुअली और रहने के लिए आपका अपना कमरा होगा, वाइफ का अपना कमरा होगा अगर वो परस्यू कर रही है. रेयर केसेस में माँ ने साथ साथ दिया है, और कईयों में बहुत अद्भुत उनके डिसीजन रहे. द्युमन भाई के केस में तो उन्होंने तो हस्बैंड वाइफ दे नेवर स्टे टुगेदर, लेकिन देयर वाज अनदर पर्सन टू हुम द्युमन मदर हैड आस्क्ड टू टेक केयर ऑफ हिम, और शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द्युमन भाई. लेकिन जब द्युमन भाई की अपनी वाइफ आई मिलने, तो द्युमन भाई कहते हैं कि मदर शी हैज कम, शी वांट्स टू मीट मी, व्हाट शैल आई डू. मां ने कहा ओनली वंस एंड इन फ्रंट ऑफ मी. ये सोशल नॉर्म्स वगैरह की चीज नहीं है, ये अलग चीज है. ये एक इंडिविजुअल परस्यूट है, और अगर दोनों हैं तो ये बहुत अच्छी बात है. ऐसे इंस्टेंसेस हैं बट रेयर है. सो इसको ये चीज समझनी है कि एक बड़ी इंडिविजुअल डिफरेंट टेम्परामेंट है, कोई बात नहीं है, पर यू नीड नॉट बी
क्लिंगिंग टू ईच अदर एज हस्बैंड वाइफ, मतलब यू आर देयर टुगेदर फॉर ईच अदर, केयर फॉर ईच अदर. बड़ी सुंदर चीज़ है कि कोई व्यक्ति है जीवन में जो आपको केयर करता है और आप उसकी केयर करते हो, तो बहुत अच्छी बात है. पर योग का पथ तो अपने अपने ढंग से जाएगा. कोई मेडिटेट करना पसंद कर रहा है, कोई किसी के भक्ति से आंख में आंसू आ रहे हैं, कोई सेवा में लगा हुआ है. तो दैट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, वन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड मोर should spend more time, yes, studying, they're working. He is sometimes in pressure to work for some. Is it because of temperament? हाँ, ये अलग अलग है बिल्कुल. और ये स्पिरिचुअल लाइफ में एक बार मुड़ गए तो वन हैज़ टू एक्सेप्ट दैट भाई हर एक की जर्नी यूनिक है. तो उसमें ये सब समस्याएं आती हैं. अब मान लीजिए पैसे कमा रहे हैं, या अगर मान लो हस्बैंड का मन कर रहा है घूमने का, बाहर जाके खाना खाने का, वाइफ का नहीं कर रहा है, तो ये समस्याएं आती हैं. इसीलिए जितना संभव है एज एन इंडिविजुअल वन गोस. शुड वी फुलफिल आवर डिजायर्स और रिजेक्ट देम? यू कैन नेवर फुलफिल डिजायर. डिजायर एक अंधा कुआं है, जितना उसमें डालोगे वो डलता चला जाएगा पता नहीं कहाँ. और उसका मैं एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ. हमारे बॉडी की संरचना में और हमारे उपनिषद में कहा गया हंगर दैट इज डेथ. एक ऑर्गन है जो है भी और नहीं भी. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो क्या है? एक ट्यूब है, ऊपर भी खुला है नीचे भी खुला है. इट्स वेरी स्ट्रेंज. मतलब ऑर्गन एक होता है ना कि भाई ये डिस्टिंक्ट ऑर्गन है, तो वो ऑर्गन है, सही बात है, और वो नहीं भी है. क्या करता है? आपकी भूख मिटाता है ना, ऊर्जा देता है. भूख केवल नहीं मिटाता, आपको ऊर्जा देता है. अब आप देखिए कि आप पूरे जीवन में कितना टन इसके अंदर डाल देते हैं. कभी कैलकुलेट करिएगा, चक्कर आ जाएगा. नहीं, मैंने किया हुआ एक बार, बहुत आपका परेशान हो जाओगे. कहाँ चला गया? ये अंधा कुआं है. वैसे ही कुछ लोग होते हैं, उनको लगता है कि नहीं बस इस बार वन लास्ट टाइम. वन लास्ट टाइम बिकम्स अनदर लास्ट टाइम. एक टाइम आएगा जब आपको कहना पड़ेगा कि नहीं आई डोंट वांट इट. अब उसके बाद ये नहीं होता है कि आज आपने बोला आई डोंट वांट इट और खत्म हो गया. पर गाड़ी में ब्रेक तो लगाना शुरू करिए. वो एक कहानी ना, बच्चा, एक मुस्लिम फैमिली, पहला बच्चा हुआ, उसका कहा उन्होंने बिस्मिल्लाह, दूसरा हुआ सुभान अल्लाह, करते करते 12वें बच्चा हो गया. तो 12वां जब हुआ तो नाम रखा उन्होंने बसकर अल्लाह. बसकर अल्लाह, बसकर अल्लाह. तो ये चीजें नहीं रुकती हैं. आप इसमें जितना घी डालोगे ना उतना ये बढ़ेंगी. तो आई एग्री, ये एक दिन में नहीं जाता है, बहुत समय लगता है. एक दिन क्या, सालों लग जाते हैं. लेकिन फंडा क्लियर होना चाहिए कि रिजेक्ट करना है. उसमें ये नहीं होना चाहिए कि सेटिस्फाई करके हो जाएगा, तब तो वो फिर लपेट लेगा. बात क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इससे बाहर निकलना है. संयम लगे, जो भी लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, मैं यही मेरी दिशा है. अगर सेटिस्फाई करने पर आए तो ये तो इट इज, इसको नाम दिया है, श्री अरविंद ने एक लाइन यूज की है, लिबिडोज बॉटमलेस वेल. लिबिडोज बॉटमलेस वेल. और डिजायर का वो अंधा कुआं है, जितना डालेंगे उतना ये बढ़ेगा. सो प्लीज डोंट टेक दैट रूट, डेंजरस रूट. मतलब नॉर्मल लाइफ में अलग है. नॉर्मल लाइफ इज नॉर्मल लाइफ. आप एंजॉय कर रहे हो, जीवन में छूट गया, क्या हुआ, वो एक अलग चीज है. सम टाइम द रिजेक्शन सीम्स लाइक ए सप्रेशन. हाउ टू गिव अप? हाँ, यस. सो सप्रेशन, एक्चुअली देयर 3 टर्म्स. नथिंग रॉन्ग विथ सप्रेशन, बट देयर 3 टर्म्स जो आप कह रहे हैं, आई अंडरस्टैंड. रिप्रेशन इज जहां पर आप कॉन्शियस ही नहीं है, आपने उसको अपने अंदर दबाया हुआ है, यू आर नॉट इवन अवेयर. दैट इज नॉट हेल्दी, क्योंकि फिर वो एक रॉन्ग रूट लेगा, कोई ना कोई डेविएंट रूट लेगा. सप्रेशन इज वेर यू आर कॉन्शियस ऑफ ए प्रॉब्लम एंड यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट, एंड नथिंग रॉन्ग विद इट. साइकोलॉजी में जो प्रॉब्लम आती है वो रिप्रेशन के कारण आती है.
जहाँ आप कॉन्शियस नहीं है किसी वृत्ति के और आपने उसको रिप्रेस किया, आप कहते हो नहीं मुझे तो जी गुस्सा नहीं आता, मेरे अंदर तो ये डिजायर ही नहीं होती, नाउ दैट इज रिस्की, बिकॉज वो एनर्जी तो आपके अंदर है और वो आपको कोई ना कोई रूट लेगी, डेविएंट रूट लेगी. सप्रेशन इज वेरी यू आर कॉन्शियस कि मेरे अंदर ये डिजायर है, सेक्सुअल डिजायर है, ओके इट्स देयर, पर आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो. तो कुछ समय के बाद वो फिर अगर जागती है, एक टाइम आता है व्हेन यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट, सो फाइन यू गो थ्रू वट एवर यू हैव टू गो थ्रू. रिजेक्शन इज ए मोर डिफिकल्ट प्रोसेस, नो डाउट. रिजेक्शन में क्या करते हो आप, जैसी सजेशन आता है आप उसको इमीडिएटली यू थ्रो इट अवे. तो वो तब होता है जब धीरे धीरे हम इसको वर्क करते करते इतने कॉन्शियस हो जाते हैं, हमारी एस्पिरेशन इतनी जाग जाती है कि जैसे ही वो सजेशन आ रहा है यू आर थ्रोइंग इट अवे. इट्स नॉट ईजी, लेट्स एक्सेप्ट. तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली केवल ग्रेस से ही जाती हैं. तो वन हैज़ टू कीप ऑन बिकमिंग अवेयर, डू वंस ओन बिट एंड कीप ऑफरिंग टू ग्रेस. वन डे द ग्रेस रिमूव्स देम. ग्रेस का अपना तरीका है, उन पर छोड़ दीजिए. और हाँ डिफिकल्ट है भाई, ये कोई भी चीज़ ईजी नहीं है. स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट, वन हैज टू एक्सेप्ट इट. How do we know if we should marry or have children or reject these suggestions is given? See, you can see that we already believe that the purpose of life is divine. ये देखिए ऐसा है कि अब there is no way to know कि whether you should get married or not. आपको अपने अंदर देखना है, तो जानना चाहिए, लेकिन what is what? Marriage and spiritual life go generally into different directions. That's a fact. पर वेदर वन वांट्स टू गेट मैरिज, अगर मान लीजिए बायोलॉजिकल नीड बहुत स्ट्रांग है या इमोशनल नीड बहुत स्ट्रांग है. सपोजिंग वन हैज़ ए वेरी स्ट्रांग डिजायर टू हैव ए चाइल्ड, और इन मैन इफ देर इज अ वेरी स्ट्रांग सेक्शुअल डिजायर, लेट्स पुट इट लाइक दैट, तो इट्स बेटर टू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ मैरिज वेर यू कैन स्लोली रेगुलेट. बट इट इज गोइंग टू कम विद ए वेरी वेरी हैवी प्राइस, दिस वन मस्ट नो. पर ठीक है, इवोल्यूशनरी जर्नी है. इट्स नॉट, अब एज आई सेड होते हैं लोग मैरिज के बाद भी, पर वशिष्ठ और अरुंधति तो एक कपिल आपको ऐसा मिलेगा, अगस्त लोपामुद्रा. परंतु जो जनरल है, और उसमें भी उनको कितनी कठिनाई हुई थी. व्हेन यू रीड लोपामुद्राज, इवन सम ऑफ हर वर्सेस, वो अपने उनकी वेदों में ऋचाएँ हैं इस तरह की, जहाँ वो, क्योंकि उनकी जो हस्बैंड थे ना बहुत वन पॉइंटेड थे, ऋषि अगस्त्य, तो वो कहती है तुम्हारे अंदर ब्यूटी का कोई एहसास नहीं है. वो बेचारे, मतलब ही सडनली रियलाइजेस की बात तो सही है कि ब्यूटी इज एन एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन. और फिर उनकी कुछ ऐसी ऋचाएं हैं जो भगवान को बड़े एक श्रृंगार के रूप में देखती. वेदों की ऋचाएं उन्होंने लिखी है. रीड गो थ्रू लोपामुद्राज एंड अगस्त ऋषिज ऋचाएं, दे आर सो डिफरेंट. तो वो एक सिचुएशन है जहां वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को. ऐसी मैरिजेस होती हैं जहां दोनों एक पथ पर चल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक कॉम्प्लीमेंट्रिटी है. तो एक जो है वो आइडिएटिव साइड में चल रहा है, दूसरा उनके इमोशंस को और इमोशनल बीइंग को भी बाहर निकाल रहा है, प्रेम का रस डाल रहा है. तो ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी अगर है तो बहुत अच्छी बात है. पर अगेन ये सब कहना बहुत मुश्किल है कि कहाँ कॉम्प्लीमेंटैरिटी है नहीं है. ये तो नियति होती है. सच तो ये है कि सोल की somewhere a choice to go through certain experiences, if you want to put it like that. पर किसी भी चीज़ को एब्सोल्यूट नहीं समझना है. ये सब रिलेटिव ट्रूथ्स हैं. एब्सोल्यूट तो केवल डिवाइन है, और उस राह में बहुत कुछ आता है. हो तो बहुत अच्छा है, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का. जैकपॉट हिट हो गया अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बीइंग्स हैं, दोनों के अंदर एस्पिरेशन है, वेरी नाइस. अदरवाइज टर्न एवरीथिंग इनटू अ डिवाइन लिविंग. अगर वाइफ नहीं अंडरस्टैंड करती या हस्बैंड नहीं अंडरस्टैंड करते, कोई बात नहीं है. यू डोंट हैव टू लीव देम एंड सर्च फॉर अनदर. नहीं, इफ दे हैव टू ड्रॉप आउट, दे विल ड्रॉप आउट अपने आप. वही एक प्रोसेस है उसकी. आप अपना भगवान की धुन में चलते रहिए. कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमको उनसे, कई लोग बोलते हैं कि डाइवोर्स लेना है. मैं पूछता हूँ क्यों? आपको रीमैरिज करना है, मतलब एक अकल नहीं आई एक बार में. It's only divorce is if you want to remarry. Honestly, there is no other logic. साथ है कोई, आप भी प्यार से देखो. प्यार मतलब केयर फॉर ईच अदर.
अब ठीक है, वो आपका वो परफेक्ट फिट नहीं है, यू आर नॉट वो जो परफेक्ट आइडियल खोज रहे हो, तो वो तो संभव नहीं है ईगो की लेवल पर, पॉसिबल नहीं है. आप बार बार उसमें दुखी होगे. तो वन हैज टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि स्पिरिचुअल परस्यूट शुड बी प्राइमरीली फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन. एंड डिवाइन इज नॉट मेंट टू जस्ट कीप गिविंग अस परफेक्ट कपल एंड परफेक्ट चाइल्ड एंड ऑल दैट. नहीं, वो तो आपको उनका क्या नाम है, नरसिंह मेहता जी की कहानी पढ़ी है, सोक्रेटिस की कहानी. आपको पता है सोक्रेटिस की कहानी? एनीबडी नोस? जब वो घर आते थे ना, उनकी वाइफ उनको बराज ऑफ एब्यूजेस, और साथ में कहती कितने बदसूरत हो तुम. ये चुप रहते थे. उनकी एक डॉक्यूमेंटेड स्टोरी है कि एक डिसाइपल उनके घर में गया और देखा कि उनकी जैसी वो घर में गया, इतने में उनकी पत्नी आई. ये क्या है, तुम फिर किसी को ले आए, तुमको कोई काम धंधा नहीं है, पैसे वैसे कमाने चाहिए. सोक्रेटिस एकदम चुपचाप बैठे हैं. फिर उन्होंने ला करके पानी की बाल्टी डाल दी. इससे डॉक्यूमेंटेड स्टोरी सोक्रेटिस के ऊपर. और जो उनके शिष्य है उसको बड़ा गुस्सा भी आ रहा है, एम्बेरस्ड भी हो रहा है. सोक्रेटिस शांत रहे कुछ देर के बाद. फिर अब इसके आगे अब क्या करोगे, तो चली गई. सोक्रेटिस ने फिर कहा ओके विल स्टार्ट द लेसन. हाँ, वन ऑफ हिज पास्ट लाइव्स. तो वो तो वन हैज टू प्रैक्टिस इट कि अगर वाइफ अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है तो अच्छा है, अगर ध्यान नहीं रखती है तो और भी अच्छा है. क्योंकि अगर ध्यान रखती है तो आपको थोड़ा यू आर बीइंग केयर्ड फॉर, you are being made a fat hen and you can divert your energies fully towards the divine. ओरिजिनल जो ऋषि और उनके वाइफ का जो कंसेप्ट था यही था, that the wife would organize everything to express what the rishi is striving. और अगर ध्यान नहीं रखती तो बहुत ही अच्छा है, आप अटैच ही नहीं होगे, आपको कुछ करनी ही नहीं है. मीराबाई की स्टोरी का यही तो सार था. पूछा उन्होंने कि भाई मैं शादी करूं कि नहीं करूं, तो एक बुआ ने कहा जरूर करो, मेरा हस्बैंड तो बहुत ही अच्छा है, सुबह से शाम मेरी सेवा करता है. मेरा भाई को लगा कुछ तो गड़बड़ है, ये तो सच नहीं बोल रहा है. दूसरी बुआ से पूछा, बोली तो पहली ने कहा कि नहीं बहुत अच्छा है क्योंकि वो मेरा इतना ध्यान रखता है, मैं हरी में मन लगा लेती हूँ अपना. दूसरी से पूछा, बोलती कि जरूर करो, मेरा हस्बैंड तो मुझे इतना उपेक्षा से देखता है कि मेरे पास हरि के उसमें चरणों में चित्त लगाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो शी गॉट मैरिड. डिड इट मेक ए डिफरेंस? नथिंग. इफ अगर स्पिरिचुअल लाइफ में कोई एस्पिरेशन है, एट सम पॉइंट इट डजंट मेक ए डिफरेंस कि वो आपके साथ वाइफ या हस्बैंड चल रहा है नहीं चल रहा है, वो आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है, एवरीथिंग विल टर्न टुवर्ड दैट गोल. पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए. खुशी मिल रही है नहीं मिल रही है, वो आपको उल्हाना दे रही है या आपको केयर ले रही है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हर चीज को आप भगवान की ओर मोड़ दोगे. तो एस्पिरेशन तो ऐसी होनी चाहिए. भाई समटाइम आई फील दैट विदाउट लिसनिंग टू टॉक्स ऑन अरोमा एटलीस्ट, हाँ ये मैंने कल पढ़ा था कि टॉक सुनना अच्छा लगता है, पर कभी कभी मैं सुनता हूँ तो डीप स्लीप में चला जाता हूँ. ये बहुत अच्छी बात है. इट इज़ नॉट लैक ऑफ प्लास्टिसिटी, इट इज़ बिकॉज उसमें जो एक इंटेंसिटी या जो भी रिसीव करते हैं तो बाहरी चेतना सो जाती है, तो वो अंदर की चेतना अपनी सुसुप्ति अवस्था में. इट्स ए गुड थिंग. मुझे तो बहुत लोग आकर के बोलते कि रोज हम आपके साथ सोते हैं. तो मुझे लैंग्वेज देखिए, और बड़े उसके बाद वो नॉटीली हंसेंगे भी. तो अब पहले तो मैं एम्बेरस्ड होता था, ठीक है मैं कहता हूँ चलो बिना दवाई दिए आपको नींद आ जाती है, यही मेरा आओ भाग्य है. और सुनते सुनते सो जाते हैं. हाँ हाँ, अब देखो वो बोल रही है स्लीपिंग. बहुत लोग ये बोलते हैं कि आपकी टॉक सुन के, तो अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, पर आई एम फाइन, आई एम हैप्पी. एक्चुअली ये एक अच्छी चीज़ है ऑनेस्टली, क्योंकि वो आपकी अंतस चेतना में जाती है और सबकॉन्शियस माइंड में काम करती है. तो बहुत अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग विद इट, इट्स ए गुड थिंग. I have a question. How do you then prepare the outer also to be ready
अरे भाई पहले अंदर तो जाने दो, आउटर वर्क हो जाएगा, सीधा आउट। सब लेवल पे एक साथ काम होता है, ऑन ऑल द लेवल्स वर्क गोज ऑन। व्हाट आई मीन इज कि इफ यू आर लिसनिंग टू समथिंग नाइस विच यू फील इज अपलिफ्टिंग एंड यू स्लीप इन दैट, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इट इज स्टिल सिंकिंग इनसाइड एंड प्रिपेयरिंग. Yes, you have to work on the outer also. Or if you're actively listening with the mind, it will have an effect on the mind also. You will remember. Yes, I understand, but let it at least go in the inner being. Sometimes it's better because the mind gets very much into an analytical mode and it interferes with the actual content and the vibrations going inside. So it's perfectly fine. And what has gone inside will come out. It will influence the mind, it will influence the heart. Not to worry about it. I'm thinking, my feeling is like that Srima and Sri Aurobindo Prabhu are from the one supreme consciousness, transcendent force or supreme yes, to whom we all say Supreme Lord and the Divine Mother. Are they the creator of this universe? Okay, I get the point. Yes, yes, that is true. But then why they have taken a human body? We have to understand that. तो क्रिएटर हैं, लेकिन वो क्रिएटर जब अवतार के रूप में आते हैं तो एक विशेष प्रयोजन से आते हैं. तो वो एग्जैक्टली हम उनको मतलब फिर जरूरत ही नहीं है, क्रिएटर तो क्रिएटर हैं, अपना काम कर रहे हैं. जब क्रिएटर राम के रूप में आते हैं, राम भी तो क्रिएटर है ना, उस समय वही सच्चिदानंद ब्रह्म है. तो जब वो राम का रूप लेके आते हैं तो एक विशेष पर्पस से आते हैं. ये सच है कि वो क्रिएटर वाला भी काम कर सकते हैं, इन द सेंस कि आपको अगर सुप्रीम को प्रार्थना कर रहे हो तो ही कैन रिस्पॉन्ड. लेकिन वो आते हैं एक विशेष प्रयोजन से जो उनका मुख्य काम है. उसी प्रकार से जब कृष्ण है, वो भी क्रिएटर है, वो भी कहते हैं कि पुरुषोत्तम मैं ही हूं, लेकिन वो एक विशेष पर्पस से आए हैं. तो वो हमको फोकस कभी नहीं भूलना चाहिए. उसी तरह मां श्री अरबिंदो क्रिएटर हैं, तो उनके साथ हम संबंध वैसा जोड़ सकते हैं. क्रिएटर का भी मां ने स्वयं लिखा है. तो वो संबंध क्या है कि हम क्रिएटर के पास हर प्रॉब्लम को लेके जाते हैं, अपनी सब चीज़ों को लेके आते हैं और क्रिएटर रिस्पॉन्ड करते हैं. और वो अगर फिजिकल बॉडी में है तो इट बिकम वेरी इजी टू गेट दैट रिस्पॉन्स. लेकिन दूसरा ये भी समझना चाहिए कि वो क्रिएटर प्लस वो विशेष काम जो करने आए. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से अवतार इज वन, क्रिएटर प्लस वन. क्योंकि अब क्रिएटर तो है, वो अपनी इनर कॉन्शियसनेस में शी इज अ यूनिवर्सल मदर. और माँ के साथ तो बहुत होता था, कितने लोग, कोई किसी की डेथ हो गई, मदर वुड ऑफन गो इन टू ट्रांस, कोई कहीं हेल्प के लिए पुकार रहा है तो शी इज रिसीविंग दैम एंड शी इज रिप्लाइंग टू दैट. लेकिन उनका मेन पर्पस है रूपांतरण. उसमें जो लोग उनसे वैसे जुड़े तो दैट समथिंग वेरी स्पेशल. सो यस, दे आर क्रिएटर. वो अवतार तो होते ही हैं. Yes, to lift the human being to the supreme level. Very true. Why do we get so many blows away with emotions like anger, and why do they have so much hold on over us that they make us turn our will against ourselves? Well, it is a question of stage of development. So in the beginning, these things have a great hold because the spiritual life is nascent. It's not fully developed. So they have a great hold and they can turn us against it. But what is to be done? Don't worry about it. Keep developing the nascent spiritual life. Then it will become strong one day and overpower them. So it is just a question of the stage of development in which one is. Keep developing the spiritual life. Keep aspiring. So one day it will become so strong that this will become much less weakened. That's the only way to go about it. Yes, they initially, there is a very nice image about it. So image ऐसे है कि जब आग ना हल्की होती, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, तो थोड़ा भी झोंका आता है ना स्टॉर्म का, तो उसको बुझा देता है. हवा तेज चलती तो उसको बुझा देती है. लेकिन जब अग्नि बढ़ गई होती है तो हवा का झोंका क्या करता है, उसको और बढ़ा देता है.
इसका एक दूसरा भी एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जब वृक्ष छोटा होता है, पौधे के रूप में होता है, तो उसको पशु खा सकते हैं, आप उसको प्रोटेक्ट करना होता है, प्रिकॉशन लेने होते हैं. लेकिन वही जब पौधा जब वट वृक्ष बन गया तो सांप भी उसके अंदर आकर के शरण ले लेता है. तो उसमें दोनों में कॉमन चीज क्या है? कीप इंक्रीजिंग द फायर, कीप इंक्रीजिंग द प्लांट इनटू द ट्री. तो अपने आप सक्षम बन जाएगा व्यक्ति. शुरू में स्पिरिचुअल लाइफ को गार्ड करना होता है. तो ऐसी सिचुएशन जहां आपको बहुत गुस्सा आएगा, ऐसे व्यक्ति, इस तरह की चीजें जिसमें बहुत एक्साइटमेंट होगा, तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि वो नेसेंट स्पिरिचुअल लाइफ है. पहले उस बच्चे को बड़ा करना है. जब बच्चा छोटा है पालने में, तो पूतना, केशी, कौन कौन से अघासुर, ये सब आएंगे उसको मारने के लिए. जब बड़ा हो जाएगा तो वो कंस को पछाड़ देगा. सो फोकस शुड बी ऑन डेवलपिंग इट एंड प्रोटेक्टिंग इट. इसीलिए बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं. पार्टी में मत जाना, किसके लिए? नॉर्मल लाइफ में यू कैन गो एनीवेयर, बट जब आपकी नेसेंट स्पिरिचुअल लाइफ है, आप उसमें जाओगे तो टनों गंदगी अंदर में आ जाएगी. अगर आपका स्पिरिचुअल लाइफ गोल नहीं है तो डजंट मैटर रियली. पर धीरे धीरे यू कैन बिकम सो स्ट्रांग इनवर्डली कि आप कहीं पर भी जाएंगे, इट विल नॉट अफेक्ट यू. तो इट डिपेंड्स, वन हैज टू सी व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वन इज. You, by observing, you will see that you are not disturbed. It doesn't matter to you. Not that you will deliberately choose to go to a party. Why would you? And you don't want to go. It's your choice. Why should you go to a place just to prove a point which is full of dirt? You will not go. But if you go, like in Air Force, I had no choice. Though many times I would omit. But if you have to go, family function है, मान लो कोई चीज़ है, आप उससे ये कट ऑफ नहीं कर सकते हो पूरी तरह, तो आप उससे प्रभावित नहीं होगे. दैट इज द डिफरेंस. सो दैट्स व्हाई इक्वानिमिटी इज ए प्रैक्टिस एंड टेस्ट. दैट्स हाउ श्री अरविंदो पुट्स इट. सो इफ यू आर एबल टू रिमेन इक्वल माइंडेड, इट डजंट अफेक्ट यू, दैट इज फाइन. दैट इज द साइन. What about other entities, species? Will they evolve? Yes, we said that they will all evolve in the sense that they will recalibrate and readjust themselves. Evolve is humans are consciously evolving, but all the chain interconnected will affect. How? Just as जब human beings आए इस संसार में, तो उस समय के जो एनिमल लाइफ थी उसमें अंतर आया. कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो डिसअपियर हो गए, कुछ एनिमल्स ने अपनी फेरोसिटी को लूज कर दिया, टेम्ड हो गए, ह्यूमनाइज्ड हो गए. डॉग्स में देखिए कितने ह्यूमन इमोशंस आ गए, फ्लैटर करना सीख गए डॉग्स. Sometimes they feel jealous, cats can feel jealous, क्योंकि वो ह्यूमन कॉन्टेमिनेशन के कारण उनमें ये चीज़ें आ गई हैं. तो अब ह्यूमन बीइंग्स ने तो बहुत सुंदर चीज़ें नहीं पास की हैं उनको, लेकिन सुपरामेंटल बीइंग विल डू. तो वो जो चेंज आएगा, अच्छा चेंज आएगा, प्लांट लाइफ पर, एनिमल लाइफ पर, ह्यूमन लाइफ पर, सब पर. हाउ कैन ह्यूमन्स हैव लॉस्ट देयर दिव्यता? हैव दे एवर रीच दैट स्टेज in the past? If they did already, why have they come down and regressed? This is not regression. दो तरह का लॉस होता है. एक होता है जहाँ पर आप you lose it because of some foolishness or something. एक होता है जहाँ आप deliberately आते हो for a certain purpose. So इसलिए एक लाइन पढ़ी थी हमने सावित्री में, एक God come down and greater by the fall. So human beings एक ट्रांजिशनल लेवल पर इवोल्यूशनरी हायरार्की में बहुत ऊपर है. माँ ने बताया कि दे आर फ्रॉम द सेम स्टेटस वेयर द गॉड्स आर देयर, ह्यूमन बींग्स. और इसमें बहुत उपनिषदों में भी कहा गया है. तो लेकिन अब वो वहाँ पर स्टैटिक है वो चेतना. इट हैज़ टू गो बियॉन्ड, क्योंकि उसके अंदर संभावना है आगे जाने की. तो वो ह्यूमन डिसेंट होता है फॉर ए फर्दर असेंट. तो गॉड्स के बारे में भी कहा जाता है कि अगर गॉड्स को इवॉल्व करना है तो मानव देह को चुनते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर एक संभावना है चैत्य सत्ता की और डायरेक्ट डिवाइन कांटेक्ट की. ह्यूमन बींग्स में है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से बनी है. तो उसके द्वारा आप गॉड्स के स्टेटस से सीधा गॉड विद ए कैपिटल जी उस स्टेटस में जा सकते हो, विच इज़ ए बिग लीप. सो दे कम डाउन, और फिर जो उसको रियलाइज कर चुके हैं, सब नहीं है, दे डोंट रिग्रेस, दे कम डाउन फॉर द वर्क. सो अब जब आप वर्क में आते हो तो इट मे लुक लाइक रिग्रेशन.
अब देखिए कोई आदमी मिट्टी कादों के बीच में उतर आया है काम करने के लिए, सपोजिंग इज ए बिग मैन, पर वहाँ कीचड़ में काम कर रहा है तो उसके हाथ में कीचड़ लगा है, उसके कपड़ों पर, तो आपको लगेगा कि ये तो ऐसे ही कोई आदमी है। लोग कई बार आती है ना, एक मूवी में भी था कि आप मालिक को बुलाइए, तो कहते हैं भाई मालिक मैं ही हूँ। वो काम कर रहा है गार्डन में, कहता है मालिक मैं ही हूँ, तो उसको विश्वास नहीं होता है। तो ये भी है कि वो नेसेसरली रिग्रेशन नहीं होता है। जो रियलाइज्ड बीइंग्स हैं वो आते हैं काम के लिए, तो जब काम के लिए आते हैं तो उन पर छींटे पड़ते हैं, वो फिर वो दे आर एंटरिंग इनटू दैट फील्ड जो अपने आप में डिफिकल्ट फील्ड है, तो उसकी डिफिकल्टीज उनके ऊपर आती हैं। वो रिग्रेशन नहीं है, वो वर्क है। तो वी हैव टू सी इट इन दैट वे। Even when we do our professional work with minimum possible self-interest, ambition and money, even then a sense of attachment to work builds. Yes, it feels like love for the work, sense of responsibility for the work, but when it is encroached upon, it makes me feel uneasy, as if something is taken away. Of course, I often offer it to Ma. So that's true. ये एक सात्विक स्टेज है डेवलपमेंट की. इट्स ए गुड थिंग, इट्स नॉट समथिंग बैड अगर आपको जिम्मेदारी लग रही है, लेकिन ये सात्विक स्टेज है. स्पिरिचुअल लाइफ में ये सात्विक लोगों के लिए कठिनाई होती है. उनको लगता है यही एवरीथिंग है, और उसको आसानी से नहीं ब्रेक कर पाते हैं, क्योंकि ब्रेक करने की जरूरत नहीं है. यही कि ये यहाँ मुझे अभी माँ ने रखा है, लेकिन कल को अगर माँ यहाँ से हटा देंगी तो हटा देंगी. और दूसरी बात ये भी है कि किस हद तक ये अभी अज्ञान में मैंने इसका चुनाव किया था. जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, कोई और एक्टिविटी या कोई और चीज़ मुझे ज़्यादा करीब ले जाएगी मेरे स्पिरिचुअल एम के, देन वन शुड बी विलिंग टू लीव दिस फॉर दैट. बट दैट्स हाउ इट इज. ए गुड थिंग. एक सात्विक डेवलप्ड ह्यूमैनिटी का लक्षण है कि वो जिम्मेदार फील करता है, पर उसके अंदर ये पता होना चाहिए कि ये अल्टीमेट नहीं है. और अगर वो भगवान के काम के आपकी परस्यूट के बीच में आ रहा है, तब यू शुड बी वेरी क्लियर कि नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फाइंडिंग द डिवाइन विद इन. नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो वो अगर आपके अंदर ये विल है जेन्युइन सिंसियर, तो रास्ता भी मिलेगा. तो वन हैज टू हैव दी सिंसियर एस्पिरेशन एंड फील दैट आई एम वैल्यूइंग दिस. अभी क्या है ना कि वो एक समय था, हैबिचुअली हमने वर्क को अपना बेस्ट मान लिया, वैल्यू करें. जब ये पता चलेगा कि आई वैल्यू समथिंग मच मोर, मच ग्रेटर, तो अपने आप छोड़ते ही हो. कोई भी चीज़ होती है, व्यक्ति खुद बीमार पड़ जाता है तो अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देता है, तो वैल्यू करता है ना. या कोई लव्ड वन के लिए अपने काम को फिर नज़रअंदाज करता है. तो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ वैल्यू. इफ यू वैल्यू स्पिरिचुअल लाइफ, then nothing will stand in the way. तो एक प्रश्न जो हमको करना है अपने आप से कि do I really value? Offering to mother is okay, but do I really value this spiritual development, this inner growth? मुझे क्या faith है इतना कि हाँ divine exists and he is worth pursuing? तो वो सब करना चाहिए जो हमको उसके प्रति हमारी वैल्यू को बढ़ाए, वैल्यू जगाए. तो रेस्ट विल हैपन ऑटोमेटिकली. We have to learn to love the divine in everyone, even in the beloved. ये तो देखा लग रहा है, पहले हुआ है. We have to finally love the divine within. No, within, outside, in everyone. But why then some meet us as a friend? हाँ, ये ठीक है. Some as parent, some as child. हाँ, ये तो है ना लीला का आनंद. तो we have to love the divine as beloved, but divine is also father, mother, everything. और वो हमें कई रूपों में, विविधता में उनको एंजॉय होता है. लेट मी पुट इट इन दिस वे. अब कई लोग तो यहाँ पर मैरिड कपल भी हैं. क्या मैरिज में केवल एक तरह का रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ के बीच? नहीं, उसमें मदर भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, फ्रेंड भी होता है. सारे रिलेशन समाहित होते हैं. आइडियल मैरिज की जो बात कर रहे थे हम, उसमें ये सारे रिलेशन, कंपेनियन है, पार्टनर है, सब कुछ साथ में चलता है. तो उसी प्रकार से
डिवाइन भी हर किसी के अंदर, किसी में वो बच्चे के रूप में आ रहा है, सारे रिलेशंस की विविधता, कभी वही डिवाइन पेरेंट के रूप में आ रहा है, कभी वो बिलविड के रूप में आ रहा है, आई एम टॉकिंग ऑफ अर्थली ह्यूमन फॉर्म, कभी वो एक ह्यूमन फ्रेंड के रूप में आ रहा है, पर है वही एक डिवाइन, अलग अलग रूप में आ रहा है। क्यों आ रहा है ये तो वही जाने, ये उनकी मौज है। आई मीन वन कैन एक्सप्लेन इट, बट ये उनकी मौज है। पर ये कोई चीज फिक्स नहीं होती है। इस जन्म में जो आपका फादर है, हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में या प्रीवियस लाइफ में वो हस्बैंड रहा हो, तो ये तो फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। भाई रहा हो, जो इस लाइफ में हस्बैंड है, पिछले लाइफ में आपका भाई रहा हो, नेक्स्ट लाइफ में आपका परम शत्रु क्या है। मतलब ये जॉय है, इसको वी शुड टेक जॉय इन दैट। ये विविधता आनंद को मल्टीप्लाई करने के लिए है। तो डिवाइन भी उसी तरह से, ताकि हमको अलग अलग तरह से अनुभव हो। डिवाइन बच्चे के रूप में आया तो क्या मजा है, उसका अलग मजा है। फ्रेंड के रूप में आया तो और भी मजा है। आपके साथ साथ मिलके मिस्चीफ कर रहा है, उसका अपना मजा है। बिलवेड के सबका अपना अपना, लेकिन सबसे इंटेंस रिलेशन जो होता है वो बिलवेड का होता है, और सबसे अनकंडीशनल जो रिलेशन होता है वो माँ का होता है। ये एक बाय एंड लार्ज वी कैन से कि माँ का रिलेशन अनकंडीशनल होता है, और सबसे इंटेंस जो होता है, कंप्लीटनेस लिए होता है, वो बिलवेड का रिलेशन होता है। मैं ह्यूमन लेवल की, डिवाइन के साथ भी यही सच है। पर डिवाइन को बिलवेड के रूप में प्यार करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो मैंने तो इसका बहुत इस पर वो डेप्थ में जा कर के देखा है। तो एक ही तरीका है जो आप फिर भी अपना सकते हो, और वो जो है बिलवेड वाला, जो मीराबाई का जो प्यार है, वो आसान नहीं है। पर ये जरूर कर सकते हो कि बिलवेड मतलब तुम ही हो जो मेरे अंतरंग हो। ये करा जा सकता है कि जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। जो मैं किसी के लिए नहीं कर सकता, वो तुम्हारे लिए करूंगा। ये किया जा सकता है। पर वो बिलवेड का, जहां पे आप अपना सर्वस्व लुटा देते हो अनकंडीशनली, दैट्स इट रिक्वायर्स ए ट्रेमेंडस, वो एक कई जन्मों की साधना फलित होती है। वो अल्टीमेट है, क्योंकि वो कंप्लीट यूनियन की तरफ ले जाता है। पर उसकी तैयारी एक लंबी होती है। अभी तो वी डोंट नो इवन हाउ टू लव ह्यूमन बींग्स। लविंग द डिवाइन इज स्टिल फर्दर, एंड लविंग द डिवाइन इज बिलवेड इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो माँ श्री अरबिंदो ने इसीलिए मदर का रूप दिया है। मदर के कई बच्चे हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, और हर एक बच्चा अपने अपने ढंग से माँ को प्यार कर सकता है। इसीलिए उन्होंने बिलवेड वाला रिलेशन कहा है, लेकिन उन्होंने जो हम सब के लिए जो संबंध जोड़ा है भगवान का, वो मदर का संबंध जोड़ा है। उनको पता है बच्चों की औकात क्या है क्योंकि इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, नियर इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल, आई वोंट से इम्पॉसिबल, बट इट रिक्वायर्स ए ट्रेमेंडस काइंड ऑफ सिंसियर working on emotions, detachment from everyone else, everything else, and attachment only with the divine. So let's go with mother and child relation. That is the easiest, simplest, sweetest, and most unconditional. What is meant by destiny? ये तो हो गया. Destiny is a word we use just like chance. It simply means I don't know. It's good. We'll close with this question, but there is something which I had to talk about it. Destiny, we use a word because we don't know why things took place, how they took place. तो अब इसमें ये जो बात है, जो बात हो रही थी पहले वाले सेशन में भी, कि हमको अपनी डेस्टिनी से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए. लेट्स पुट इट लाइक दैट. सावित्री वाले में तो एक अलग लेवल पे चला गया. हमारी लाइफ में मान लो मैं बीमार पड़ा, तो मुझे उस बीमारी से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए. तो उसका उत्तर श्री अरविंद ने बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है. एज इज द विल इन यू. तो आप बोलेंगे कि डेस्टिनी तो है कि बीमार पड़े, तो आप क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ द प्लान है. सो यू आर इंस्पायर्ड टू फाइट अगेंस्ट समथिंग
एक उन्होंने ऐसे लिखा है कि इफ वन हैंड ऑफ गॉड, इफ गॉड कीप्स यू इन हेल, दो एफोरिज्म है, मे बी यू कैन फाइंड इट, इफ गॉड कीप्स यू इन हेल with both his hands, then there is no reason why you should try to come out of it. पर फिर दूसरा एफोरिज्म है, if God keeps you with one hand in hell and lifts you with the other towards heaven, then you too must struggle to come out of the hell towards heaven. तो अंदर में जो संकल्प जागृत होता है ना, वो इंपॉर्टेंट है. अगर आपके अंदर संकल्प जागृत हुआ है कि मैं अपनी डेस्टिनी से लड़ूंगी, तो वो भी उसी का प्रोसेस है, प्लान का हिस्सा है. तो जब ये कहा जाता है लीस्ट स्टम्बलिंग्स, तो ये सब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटीग्रेटेड है. जैसे हमारी अभी आकाश तीर ने किया कि उसमें सब इंटीग्रेटेड था, कि उधर से कोई मिसाइल आ रही है तो सब कैलकुलेट किया, सब कुछ किया ऑन स्पॉट एंड हिट ऑन द टारगेट. सो वो इंटीग्रेटेड है भगवान के प्लान में. और वो क्यों होता है? क्योंकि आप पास्ट से फ्यूचर की तरफ जा रहे हो. तो पास्ट में बहुत सारी आपने एक चीज़ वैलिड थी, तो आपने उसमें वो चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में देखो, एनिमल से ह्यूमन इवोल्यूशन. ओके, सो आप कैसी इमेज देखोगे? कीड़ा था, फिर वो ऐसे करके चेंज हुआ, फिर एनिमल आया, लेकिन हर एक स्टेज पे स्ट्रगल थी. तो वो स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस इन बिल्ट इन द सिस्टम. सो जब वो लोअर एनिमल हायर एनिमल की तरफ जा रहा है, तो स्ट्रगल इज ऑल्सो डिवाइन, द अर्ज टू कम आउट ऑफ इट ऑल्सो डिवाइन. लेकिन वही जब वो एक्सेप्ट कर रहा था अपना फेट एक्म्प्लाई, दैट वॉज ऑल्सो डिवाइन. सो द डिवाइन इन द पास्ट मूविंग टुवर्ड द डिवाइन इन द फ्यूचर. मैनिफेस्टेशन में ये चीज़ आती है. एसेंस में सब डिवाइन है, लेकिन हमारे ही अंदर कोई चीज़ होती है जो पास्ट में हमको उसको स्वीकार करते थे. फिर जब हम फ्यूचर की ओर जाते हैं तो हमारे अंदर उसी चीज़ के प्रति जो हमको बड़ी नॉर्मल लगती थी, नेचुरल लगती थी, उसके प्रति हमारे अंदर ये भाव आता है कि नहीं, ये छूटनी चाहिए, आई मस्ट गो फॉरवर्ड एंड फर्दर. और ये डेस्टिनी में भी, कलेक्टिव लाइफ में भी आता है कि जब लोगों के अंदर ये भाव आता है कि ये प्रथा बुरी है, तो वो प्रथा भी भगवान है. लेकिन जब उसका चेंज का टाइम आ गया, तो लोगों के अंदर ये जो भाव उठ रहा है कि इससे छूटना है, वह भी भगवान है. और फिर जब वो नया बैलेंस आता है, वो भी भगवान है. तो हमको वो देखना है कि हमारे अंदर क्या इंस्पिरेशन आ रही है. किसी और के अंदर वो इंस्पिरेशन नहीं है तो ठीक है, उसके बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करो. किसी को बुर्का पहन के ऊपर से नीचे कवर रहना है, उसको रहने दो, नो प्रॉब्लम. बट आपके अंदर अगर ये भाव आ गया है कि नहीं, वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंट, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट. सो ये जो एफोरिज्म है, आई विल जस्ट रीड. If God assigns to me my place in hell, I do not know why I should aspire to heaven. He knows best what is for my welfare. ये पहला है, जो आपका पहला वाला पार्ट है कि भाई फिर हम क्यों स्ट्रगल करें? अगर उन्होंने मुझे नरक में रखा है, तो मुझे उसको भी सहस्र स्वीकार करना चाहिए. दूसरा है, if God draws me towards heaven, then even if his other hand strive to keep me in hell, yet must I struggle upwards. तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो यू हैव टू सी कि आपके अंदर क्या मूवमेंट डेवलप हो रहा है. और अगर आप खुश हो, कोई बोलता है हेल क्या है, तो ये हेल है कि आप सराउंडेड हो लग्जरी से, सब कुछ से, लेकिन आपके अंदर एस्पिरेशन नहीं. इट्स एन एनिमल लाइफ. सो सम पीपल आर हैप्पी इन दैट हेल ऑफ देयर ओन क्रिएशन, बट दे आर प्रीटी हैप्पी. तो अभी उनको हेल में ही असाइन किया है भगवान जी. फिर आपको जब चेंज होने का वो अंदर आया, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट. इवन इफ यू आर इन कॉन्ट्ररी सर्कमस्टांसेस, स्टिल यू मस्ट स्ट्रगल फॉर दैट हायर थिंग विच इज डेवलपिंग इनसाइड यू. अभी क्लियर हो गया ना? हाँ. और वो सब स्टम्बल, सब कुछ फोर्सीन है डेस्टिनी का, लेकिन हमको पता नहीं होता आउटर कॉन्शियसनेस में. तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? अगर आप ऊपर से देखोगे तो सब कुछ फॉर्मेटेड है, यहां पर हमको कुछ नहीं पता है. तो हमको क्या करना चाहिए? हमको ये जानने की चेष्टा करनी चाहिए कि डिवाइन की विल क्या है. तो हमारी लाइफ की समस्याएं काफी कुछ दूर हो जाएंगी. इंस्टेड हम ब्लाइंडली फाइट करते हैं, दुखी होते हैं, कंप्लेन करते हैं. तो वी शुड ट्राई टू सी इन द डेप्थ्स कि भगवान की विल क्या है. क्या उनकी यही विल है कि मैं ऐसे रहूं, या उनकी विल है कि मैं इससे अलग जाऊं?
पर प्रॉब्लम यह है कि इफ यू नो द विल यू मस्ट हैव द करेज टू फॉलो इट. दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट, सेकेंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी. सो दैट आंसर्स द डेस्टिनी पार्ट आई थिंक, जो बचा हुआ था. ओके, जय माँ. कल हम लोग मिलते हैं सुबह 9 बजे.